Rahim. Assalamu alaikum students. We have started chapter number 4 and this is the next lecture number 4 of chapter number 4. And in the previous lecture we have discussed about the gas laws, Boyle's law, Charles law and Avogadro's law, and plus we have derived a derivation of general gas equation, and we have seen few of the numericals. Today we are going to continue that part obviously, and it is related with the deviation of ideal gases from ideal behavior. Okay, so let's we start from the main point. First of all, the question is, what is ideal gas and what are the gases which are named as ideal gas? So the gas which obey gas laws, all those gases which obey gas laws are known as ideal gases, and the main thing is there is no such gas exist actually. There is no such gas which is mean to be ideal gas. Yes, there is hydrogen and oxygen which are named as ideal gases, but on the extreme conditions they also don't obey gas laws. Gas laws may include होते हैं, you have Boyle's law, Charles law, Avogadro's law. So these three gases actually, all those gases which obey. So लेकिन extreme condition पे कोई भी गैस जो होती है ना वो इनको obey नहीं करती, इसलिए हम कहते हैं कि there is no such gas. Okay, so first of all the topic is deviation from ideal gas behavior, and it comes before starting with the deviation, giving the concept of ideal gas and real gas. So there are two gases actually, two kinds of gases. One is the ideal gas which doesn't exist, and the second is the real gas which we are going to talk about. A gas which obey gas laws, gas equation. Gas equation, as you know, we have studied that they were derived from the Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. So that's why in common, in the nutshell, we are saying it's a gas law, and all the gas laws, especially Boyle's law and Charles law, is called an ideal gas. No such gas is known. In reality, no gas is ideal because they show deviation at low temperature and at high pressure. So these are two conditions where your gases differ and deviate from ideal behavior, which at very low temperature and at very high pressure. These gases which do not obey general gas equation and all the gas laws strictly are called non-ideal gases or real gases. All known gases are found to be real, contain certain conditions. All known gases such as hydrogen, oxygen, nitrogen, methane, carbon dioxide, etc. are non-ideal gases. Okay, so now we are going to discuss why real gases deviate from the gas laws. So there are two conditions. First of all, we are discussing about the two parameters which we have set at a very low temperature, and at very high pressure, pressure. So what happens actually when we for example, let's we talk about very high pressure. When we are increasing the pressure on a container or on anything, so molecules become closer to each other. So there comes intermolecular forces of attractions which start generating in them. Obviously जब molecules एक दूसरे के पास आ जाएंगे, बहुत करीब आ जाएंगे, and gases की बात की जा रही है, तो obviously their intermolecular distances will be reduced. जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस उनके रिड्यूस हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कंटेनर और इसके अंदर मैंने ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो थे ये मैंने दूर दूर रखे हुए थे, ठीक है. एंड इफ़ आई एम डिक्रीजिंग द प्रेशर, मैंने इतना प्रेशर कर दिया और ये आपके गैस के मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली करीब करीब आ जाएंगे. और अगर मैं और कम कर देती हूँ, अगर मैं और वॉल्यूम कम कर देती हूँ, तो मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास आ जाएंगे. सो देयर कम्स अ टाइम जब इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शंस हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस हैं, वो क्या हो जाएंगी. यहाँ पर देखें ये दूर हैं तो ये कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, बट इस केस के अंदर जब हम बात करते हैं ये जो आपके पास है, सो इस केस के अंदर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जनरेट होंगे, तो ऑब्वियसली जो चीज़ की कंडीशन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी. अगर आपके पास गैस है तो वो गैस हो सकता है कि वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाए लिक्विड में, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है. मैं पढ़ भी देती हूँ क्या लिखा हुआ है, लेकिन पहले सुन लें कि है क्या. एंड द सेकेंड इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लेजिबल. ये हम लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं कि हमारे पास आइडियल गैसेस के ये होते हैं, बट एक्सट्रीम कंडीशंस पर ये नहीं होते, ठीक है. एक्सट्रीम कंडीशंस पर ये वैलिड नहीं होते, ठीक है. तो लेट्स वी स्टार्ट एंड लेट्स वी हैव अ लुक ऑन दैट व्हाट्स रिटन हियर. At low pressure, the molecules are generally very far
apart, and the attraction between the molecules are insignificant. At temperature above the condensation point, the kinetic energy of the gaseous molecule is so great that it overwhelms the attractive forces between them. The example of Boyle's law, as you can see, PV is equals to these are the values. Volume is 224.1. जब आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके बाद हमने क्या किया, प्रेशर, इफ़ यू सी हेयर, प्रेशर यहाँ पर 0.1 था, कम था, अब हमने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, 50 कर दिया, सो वॉल्यूम देखें कितना रिड्यूस हो गया, 0.4634 हो गया, और अगर हम प्रेशर 1000 तक ले जाते हैं तो वॉल्यूम देखें 0.384 तक हो जाएगा, और ये आपके पास जो PV की वैल्यू है इतनी आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि गैसेस ऑफ डेविएशन लिमिटेशन ऑफ बॉयज़ के लिमिटेड वैल्यू तक हो सकता है हर कंडीशन पर। ये बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ और जो आपकी आइडियल गैसेस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होती हैं, ठीक है। द आइडियल कंडीशन इज़ दैट आइडियल गैस ओबेज गैस लॉस एट ऑल टेम्परेचर, बट एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर डेविएशन कॉज्ड बाय गैसेस इज़ ड्यू टू द टू फॉल्टी अजम्पशंस। और हमारी फॉल्ट्स बता रहे हैं KMT के अंदर दो। व्हाट आर दीज फॉल्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरमोलिकुलर forces of attraction. This is what we have studied previously कि they are no attractive or repulsive forces, and ये हमने पढ़ा हुआ है. And the second is the volume of the gas molecule is negligible. तो कहते हैं कि ये दो faulty assumptions हैं which are not applicable on all the conditions of the gas laws. होता क्या है? At very low temperature, जी, एट वेरी लोअर टेम्परेचर, एट हायर प्रेशर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के दूर दूर होते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि दिस इज़ अ कंडीशन और यहाँ पर आपके पास हाई टेम्परेचर था तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के दूर दूर थे, ये हैं, ठीक है। मैं थोड़े बड़े बड़े बना देती हूँ, ये हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जैसे ही आपने मतलब क्या किया कि टेम्परेचर लूज़ किया, टेम्परेचर कम किया, तो क्या हुआ कि आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिग्निफिकेंस क्यों हो जाएंगे कि आपने टेम्परेचर जब लूज़ किया है तो आप देखते हो कि लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी आपका बर्फ़ में बन जाता है ना लो टेम्परेचर पे। सिमिलरली यही काम यहाँ पर हो रहा है। वो कह रहे हैं एट वेरी सर्टेन लो टेम्परेचर द गैसियस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। सो व्हाट यू विल से, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं? सो आंसर इज़ ऑब्वियस कि जब हमने टेम्परेचर जो है उसको कम किया है तो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस थे उन गैसेस के दरमियान वो क्या हो गए, कम हो गए। जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस कम हो गए तो वो जो आपकी गैस है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, अब वो गैस आपकी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट, ये दिस इज़ हाउ लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और ऑब्वियसली मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंसेस हुए तो स्टेट ऑफ द मैटर चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम डेविएशन। सेकंड इज़ SO, दे आर गिविंग द एग्जांपल एंड दे आर सेइंग कि SO2 लिक्विफाइज एयर एट 10 डिग्री सेल्सियस वाइल हाइड्रोजन एट -252। हाइड्रोजन ज़रा बहुत हाई टेम्परेचर पर जो है वो रिड्यूस करना पड़ता है तब जाके वो लिक्विफाई होती है। देयरफॉर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन SO2 मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड नेग्लिजिबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे नहीं, बिकॉज नॉर्मली कराची का ही टेम्परेचर अब तो 10 डिग्री से नीचे होने लग गया है सर्दियों में, ठीक है। तो कहते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के केस के लिए हम ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं कर सकते। हाँ, कंपैरेटिवली हाइड्रोजन को हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि -252 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड है। नाउ कम्स द हाई प्रेशर। एज यू कैन सी इन द डायग्राम द कॉन्सेप्ट इज सेम दैट एट अ वेरी low pressure molecules are far from each other, but if I am increasing the pressure so molecules are coming closer to each other. If molecules are coming closer to each other तो automatically there are going to be some intermolecular forces start generating there, और जब ये start हो जाएंगी बनना तो obviously क्या होगा, the gas is going to be converted into some other state, ठीक है। Let's we have a look on that. Let we read it. At low pressure actual volume of a gas molecule is very small as compared to the volume of the container. However, the volume doesn't remain negligible at high pressure. This can be understood from the following figure. अब देखिए, अच्छा इसके अंदर एक और केस होता है कि ये देखें, एक हद तक ये मैं इस पिस्टन को जो है वो प्रेस कर सकती हूँ। एक वक्त आएगा जब मैं मज़ीद प्रेस करूँगी तो ये नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए हैं तो उन्होंने ये स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। आप भले ऊपर से जितना मर्ज़ी प्रेशर डालें, इस लिड को, इस ढक्कन को आप मज़ीद नीचे नहीं लेके जा सकते क्योंकि नीचे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ साबित हुई है, यहाँ पर क्या चीज़ प्रूव हो रही है कि गैसेस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता।
ये चीज़ बताना चाह रहे हैं ये यहाँ पर आपको, ठीक है, कि गैसेस का वॉल्यूम नेग्लेजिबल नहीं है। हाँ, जब एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर दूर होते हैं तो वहाँ पर नेग्लेजिबल होता है, लेकिन अगर वॉल्यूम आपने बिल्कुल कम कर दिया तो वहाँ पर उसको आप नेग्लेजिबल कंसीडर नहीं करते हो, ठीक है, ये केस है। ओके, सो लेट्स वी हैव अ लुक ऑन दैट। व्हेन प्रेशर इज़ 1 atm एंड विजुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल सेज 32 cm इन अ नेग्लेजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो कंटेनर आपका इतना cm³ है तो उसमें 32 सेंटीमीटर होगा तो वो कम है, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम उसका कम करके इतना कर दिया, नाउ 32 सेंटीमीटर अपनी जगह रखेगा, अब वो अपनी जगह घेरेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकंड कंडीशन, सेकंड कह लें कि एक वो है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। हेयर कम्स द नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि होता क्या है, एक्चुअली मैं ग्राफ से ही डायरेक्ट समझाऊंगी आपको। कहते हैं कि हम किसी भी एक मोल गैस की बात करते हैं और उसको हम प्लॉट करते हैं, हम एक्स एक्सिस पे प्रेशर ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे PV और RT ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज़ किया। अच्छा, प्रेशर इंक्रीज़ किया तो होना क्या चाहिए था जनाब, होना चाहिए था कि आपके पास स्ट्रेट लाइन आती, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। एज़ यू कैन सी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, कुछ कुछ केसेस में स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन नॉर्मली क्या हो रहा है, एक नीचे कर्व जा रही है। ये देखिए, मैं रेड कलर ले लेती हूँ ताकि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये देखें, नीचे जा रही है कर्व और फिर ऊपर जा रही है, हर जगह यही हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि होता क्या है नॉर्मली कि हम जब प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है। अब किसी चीज़ का आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया, ये वही वाले लिड वाली एग्जांपल है, ये प्रेशर था और अब आपने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ तक आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़। तो इधर देखें, ये PV/RT लिखा हुआ है, तो अगर मैं एक प्रेशर इंक्रीज़ कर देती हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो ये जो ओवरऑल इफ़ेक्ट होगा इसके ऊपर, अब वॉल्यूम आपका प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो तो वॉल्यूम जो आपका कम हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। तो ये इन फोर्सेस की वजह से, वॉल्यूम कम होने की वजह से कह रहे हैं कि बॉयज़ लॉ आपका जो भी है, बॉयज़ लॉ की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू जो है आपकी, इस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब एक वैल्यू बड़ी है और दूसरी वैल्यू छोटी है तो उससे क्या होगा कि एक हद तक ये वैल्यू कम हो जाएगी और इनिशियली इस वजह से आपका प्रेशर कम होगा, सॉरी PV की वैल्यू रिड्यूस होगी। जब PV की वैल्यू रिड्यूस होगी तो एक डाउनफॉल आएगा और डाउनफॉल आने के बाद फिर राइज़ आना शुरू होगा। नाउ द क्वेश्चन इज़, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम प्रेशर इंक्रीज़ किए जा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होता जाए, ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि आपका प्रेशर जो है आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है आपका, इस ग्राफ को एक्चुअली किसी के भी माइंड में आ सकता है कि ग्राफ यूं करके यूं क्यों जा रहा है, ये ग्राफ यूं ही क्यों नहीं जाता जा रहा, नीचे ही जाना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम तो कम होता जाएगा। सो द क्वेश्चन इज़, एक हद तक आप प्रेस कर सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को, गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम रखते हैं, वो एक हद तक ख़ुद को प्रेस करने देंगे, उसके बाद वो कह देंगे नो, नाउ स्टॉप, नाउ वी वोंट लेट यू टू सप्रेस अस। जहाँ उन्होंने छोड़ा वहाँ तक, उसके बाद आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर ही इंक्रीज़ होगा, फिर आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट रिटन हेयर। ये इस एक्सप्लेनेशन को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यही इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में बताया यही गया है, वो मैंने आपको वर्डिंग में बता दिया। द सडन डिक्रीज़ इज़ द कर्व। अच्छा, यहाँ पर वो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट गैसेस की एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर कौन कौन सी एग्जांपल्स है, वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव मीथेन, वी हैव ईथेन, वी हैव इथीन, वी हैव अमोनिया, वी हैव हाइड्रोजन। सो जो लाइटर गैसेस थी ना, उनके तो स्ट्रेट लाइन आती है, उनके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन जो थोड़ी हैवियर गैसेस हैं उनके केस में कर्व आती है। एंड दिस वन इज़ एक्चुअली कह रहे हैं कि जो आपके पास वैल्यू होती है ना फॉर आइडियल गैसेस, इट शुड बी 1। 1 के ऊपर, जो 1 के करीब करीब लाइन के पास जो चीज़ें हैं, गैसेस हैं, इट मीन्स कि वो आइडियल बिहेवियर को शो करती हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया और आपका जनाब हाइड्रोजन हो गया, ये 2 गैसेस की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे, बाकी सारी जो हैं वो नॉन आइडियल गैसेस की टर्म में जाएंगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव वेंडरवॉल इक्वेशन है, और वेंडरवॉल इक्वेशन एक्चुअली इसको रियल गैस की इक्वेशंस भी कहा जाता है। आपने याद होगा कि कल मैंने आपको जनरल गैस इक्वेशन करवाई थी, उसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन को। इसको वेंडरवॉल इक्वेशन को रियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ करेक्शन फैक्टर्स हैं। करेक्शन फैक्टर्स क्या हैं कि एक प्रेशर का करेक्शन फैक्टर है और एक वॉल्यूम का करेक्शन फैक्टर है। हमने वो दोनों यहाँ पर जो है ना अप्लाई करने हैं और उसको अप्लाई करने के बाद हमने वैल्यू ड्राइव करनी है। सबसे पहले तो देख लें
कि कल हमने जो डेरिवेशन की थी वो क्या थी, कल हमने जो डेरिवेशन की थी वो ये थी, PV इज़ इक्वल्स टू nRT. इट वॉज आइडियल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन, ये हमने कल ड्राइव किया है. वी आर गोइंग टू करेक्ट बोथ दीज थिंग्स, प्रेशर एंड वॉल्यूम. इसको कहते हैं, इनका नाम है प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर्स. हमने यहाँ पर लगाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है. इसको हम वैन डर वाल इक्वेशन कहते हैं या रियल गैस इक्वेशन कहते हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट. द जनरल गैस इक्वेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू रियल गैसेस एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स. इन ऑर्डर टू मेक इट एप्लीकेबल टू रियल गैसेस, आर Dutch scientist Van der Waal in 1873 made correction in volume and pressure of the gases and drive an equation known as Van der Waal equation. Let's we start. First of all, what are the things which are required? These are the constants for Van der Waal equation. ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है. एंड दिस इज़ द इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू ड्राइव. ये इक्वेशन आने वाली है हमारे पास, सही है. एंड करना क्या है, चलें जी, कौन कौन से फैक्टर्स अप्लाई करने हैं, क्या क्या होगा इसके अंदर, है क्या क्या, ये सारा हम देखते हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू अप्लाई वॉल्यूम करेक्शन. वॉल्यूम करेक्शन की बात करते हैं. वॉल्यूम करेक्शन के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं, व्हेन अ गैस इज़ कंप्रेस्ड, मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड क्लोजर, then repulsive forces operates in them. Further increase in pressure is opposed by the molecules themselves because molecules have definite volume, and this is what they are saying. That is the condition. Molecules are far from each other and you are pressing them, और एक वक्त तक they will get pressed. उसके बाद वो कह देंगे कि no. सही है. तो ये वो वाली कहानी है जो मैं पीछे आपको सुना के आई हूँ. अगेन इट इज़ रिपीटेड. फिर वो कह रहे हैं कि इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट वॉल्यूम अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये होगा वी वेसल, ये जो आपका वी वेसल है ये पूरा, माइनस वी मॉलिक्यूल. ये जो वी मॉलिक्यूल्स हैं इनका अगर हम माइनस कर देंगे ना पूरे वेसल में से, सिर्फ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा. एक वी, क्योंकि हमें वी करेक्ट करना है तो वी की वैल्यू चाहिए, तो वी की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. एंड नाउ फर्दर ऑन दे आर सेइंग कि वी इज़ अ फ्री वॉल्यूम एंड वी हैव कैलकुलेटेड इट कि वी आपका जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑटोमेटिकली इफ समथिंग इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, सो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल भी होगी एवोगैड्रो नंबर. बट एवोगैड्रो नंबर की हमने वैल्यू यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी, हम जस्ट सिंपल ये कह रहे हैं. और हम फिर जब इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाना चाहेंगे तो वी हैव टू पुट सम कांस्टेंट हेयर एंड हेयर बी इज़ अ कांस्टेंट. ठीक है, बी इज़ अ कांस्टेंट हेयर. सो वी मॉलिक्यूल हमने जो निकाला है वो आया है -NB. ठीक है, और -NB, वी -NB हमारे पास जो आया है इस चीज़ को वी आर गोइंग टू पुट इन दैट हेयर. सो वी इज़ इक्वल्स टू वी वेसल -NB. ठीक है, that's what. And so B is not equal to actual volume of a gas, it is fact 4 times than equal volume of all the molecules. So B is equals to 4 Vm, but we are not going to use this part. ये जो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना चीज़, इस चीज़ को हमने नहीं करना, आपने यहाँ तक रहना है, नीचे वाला पार्ट छोड़ दें जो लिखा हुआ है 4 Vm वाला. ठीक है, दैट वॉज फॉर, इट इज़ अ करेक्शन फॉर वॉल्यूम यहाँ तक. अब आ जाइए करेक्शन फॉर प्रेशर पर. करेक्शन फॉर प्रेशर करेक्शन की बात करते हैं. व्हाट इज़ अ प्रेशर करेक्शन? प्रेशर करेक्शन के अंदर हम बात करते हैं कि सपोज़ कीजिए कि हमें प्रेशर करेक्ट करना है. और प्रेशर करेक्ट किस तरह से करना है? प्रेशर करेक्शन के लिए आपके पास अच्छा, यहाँ पे मैं पहले एक बात समझा दूँ आपको जो मैंने छोड़ दी है. PV इज़ इक्वल्स टू nRT में हमें ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है ना, तो ये आ गया है आपके पास, ये आया है. तो जो आपके पास PV की वैल्यू है, V की जगह आपने अब ये वाली वैल्यू लिखनी है. ये देखिए V -NB लिखा हुआ है, तो हम ये वाली वैल्यू जो हमने करेक्ट की है ना, V की जगह आपने वो वाली वैल्यू पुट कर देनी है. तो दिस इज़ द कंटेनर वॉल्यूम, वॉट एवर द वॉल्यूम इज़ करेक्टेड वॉल्यूम, दिस इज़ द करेक्टेड वॉल्यूम, यू विल पुट इट हेयर. बाकी फार्मूला ये रहेगा. तो अब मैं हम प्रेशर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स वी चेक इट आउट. here comes pressure correction. And when it comes to pressure correction के अंदर कहते हैं कि we have so many molecules are present. Suppose कीजिए we have a container, and container we have two different kind of molecules, A molecule and B molecule. And when we are talking about A molecule, so we will say कि A molecule are striking with the walls of the container and the molecules B are pulling them inward. What is the meaning here? ये कह रहे हैं कि आपका जो A molecule है ना, सपोज़ कीजिए कि ये जाके स्ट्राइक कर रहा है इसके ऊपर, तो ऐसा तो है नहीं कि ये जहाँ जाएगा तो इसको कोई रोकेगा नहीं. तो कह रहे हैं कि ये जो B molecules है ना, दे आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग देम टुवर्ड इटसेल्फ. तो इस A को कितनी तरफ से अट्रैक्शन हो रही है? चारों साइड से, 4
चारों तरफ से, सही है। सो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो प्रेशर है, जो प्रेशर बिल्ड होगा वो किस चीज़ के ऊपर बिल्ड होगा। ज़ाहिर है आपका जो कंटेनर है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रेशर तो जनरेट होगा। तो जो प्रेशर जनरेट होगा वो किस चीज़ की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा। प्रेशर विल बी डिपेंडिंग अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। What are two molecules? We are naming them A molecule and B molecule. Fine. So ये है इसका मतलब P prime is directly proportional to Ca and Cb, concentration of A molecule and concentration of B molecule. Okay. So they are saying let N is equals to number of moles of A and B and V is the total volume. And अब होता क्या है, concentration होती किस चीज़ के इक्वल है? concentration होता है इक्वल डी एम क्यूब, जो भी आपके पास कंसनट्रेशन होती है, नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं वो पर डी एम क्यूब के ऊपर या पर वॉल्यूम के ऊपर जो वैल्यू होती है ना, उसके इक्वल होते हैं। तो हमने क्या करना है, कंसनट्रेशन ऑफ ए और कंसनट्रेशन ऑफ बी की जगह हमने इनके इंस्टेड ऑफ सी की जगह हम एन ओवर वी, क्योंकि एन ओवर वी क्या है, फार्मूला है कंसनट्रेशन का, तो हमने 2 टाइम्स वो लिख देना है। ये सिर्फ इसका मतलब ये है, ये जो पी प्राइम करके लिखा हुआ है, पी प्राइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए। फाइन। एंड देन व्हाट वी विल से कि दिस पी प्राइम इज़ ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी, सो वी आर गोइंग टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज़ गोइंग टू बी रिमूव्ड विद द ए पार्ट एंड इट विल बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, P इज़ इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वेयर A is called coefficient of attraction. Where A is called coefficient of attraction per unit volume, it has a constant value. Put value in equation. Now what we have, this is, देखिए एक मिनट पेन बंद कर लूँ मैं जी। अब वो कह रहे हैं आपसे कि आपके पास ये आ रहा है जो भी फार्मूला आया, पी प्राइम इज़ इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये देखिए, ये इनिशियल फार्मूला था, स्टार्ट ये था पी ऑब्जर्व्ड, ये सेकंड पार्ट था, मैं ऊपर डायरेक्ट चली हूँ तो ये नीचे लिखा हुआ था, तो ये पहला पार्ट है। ठीक है, मैं पहले ये समझा दूँ आपको, फिर ऊपर लेके चलते हैं। दिस इज़ द मेन फार्मूला। इस फार्मूला के अंदर कह रहे हैं कि आपके पास हो क्या रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, इसको जैसे मैंने अभी ऊपर आपको समझाया है कि ये मॉलिक्यूल को सब तरफ से प्रेशर जो है वो सामना हो रहा है, तो टोटल प्रेशर या ऑब्जर्व प्रेशर क्या होगा, ये इक्वल है पी आइडियल, जो हमने एक सपोज़ किया हुआ है कि आइडियल ये होता है माइनस पी प्राइम। माइनस पी प्राइम किस चीज़ का है, रियल गैसेस का है। तो हमने जो पी प्राइम की वैल्यू मालूम की है, हमने सिंपल क्या करना है, अब इस आइडियल को अलग करना है, पी आई को अलग इधर लिखना है, पी ऑब्जर्व माइनस पी प्राइम करना है, और हमने जो फार्मूला यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये वाला फार्मूला, आई होप सो कि आप लोगों को नज़र आ रहा हो। ये देखिए, दिस फार्मूला, आई एम गोइंग टू पुट दिस फार्मूला ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हेयर, माइनस इसकी जगह। ठीक है, जब मैं पी माइनस ये ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर यहाँ पे पुट करूँगी, तो ये यहाँ पर ये देखें, ये आ जाएगा। एक मिनट साइन जी। यहाँ पर ये था कि ये आपके पास जो पी ऑब्जर्व्ड है ना, ये वाला, जब आप इसको पी आइडियल को अलग करोगे तो ये पी प्राइम आपका जो है, जब इस साइड पे जाएगा तो ये ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये इसके अंदर स्लाइड के अंदर मिस्टेक है, इसको हम कहेंगे पी आई इज़ इक्वल्स टू पी ऑब्जर्व्ड प्लस पी प्राइम। ठीक है, और पी प्राइम की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट और वो सेकंड पार्ट है, तो आपने पहले ये वाला फार्मूला लिखना है, इसको ये फिर ऐड करके बताना है, और फिर आपने ये चीज़ कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करनी है इस वाले फार्मूला में, पी ऑब्जर्व्ड प्लस पी प्राइम में। तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास पता है वैल्यू क्या आएगी, पी आई इज़ इक्वल्स टू पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। दिस इज़ वॉट वी हैव कैलकुलेटेड इट। ठीक है, एंड दिस पी ऑब्जर्व वी कैन राइट लाइक सिंपल पी ऑल्सो। सो वॉट वी विल, दिस इज़ द करेक्टेड आइडियल वॉल्यूम प्रेशर, सो वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हेयर। तो यहाँ जब हमने पुट किया तो हमारे पास फार्मूला ये आ गया। अब देखिए, मैं इधर, ये ज़्यादा बेहतर है आपको दिखाना कि ये देखिए, ये हमने कैलकुलेट की थी
और फिर P ऑब्जर्व्ड ये है और ये करेक्टेड वॉल्यूम है एंड इट इज़ इक्वल्स टू nRT। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। P इज़ द प्रेशर, वेदर यू वांट टू राइट इट P ऑब्जर्व्ड और नॉट, सो इट्स अप टू यू, सो आई एम जस्ट सेइंग इट प्रेशर। ठीक है, A इज़ अ कांस्टेंट, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, V is the volume, N is number of mole, B is again constant and N is the number of moles, R is the general gas constant and T is the temperature. And if I am talking about 1 mole, if I want to write this equation for 1 mole of a gas, so what we will do actually, we will simply remove this N from here। ठीक है, जब आप इस N को रिमूव करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन वुड बी P प्लस A अपॉन V स्क्वायर एंड V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास आ रहा है इसका वैन डर वाल इक्वेशन, और ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, ये जो सारे ये वाले हैं, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, ये आपके पास है कि आपको पता होना चाहिए कि वैन डर वाल इक्वेशन में A क्या है, इट इज़ अ प्रेशर कांस्टेंट, B क्या है, इट्स अ वॉल्यूम करेक्शन या वॉल्यूम कांस्टेंट के अंदर बात करेंगे। और डजन इसकी खैर वो नहीं आती हैं, ये आती नहीं है, ये वैसे ही लिखी हुई हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये आप इसको देखें। हाँ, ये है कि यूनिट्स देख लीजिए। यूनिट ऑफ A इज़ बिकॉज इट्स अ प्रेशर यूनिट, सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ATM, DM6 एंड मोल पर मोल स्क्वायर और DM क्यूब, और यूनिट्स पर मोल में है। ठीक है, सो ये यूनिट आप इसको देख लें कि यूनिट होते हैं। हाँ, इसका आता क्या है, क्वेश्चन आते कैसे हैं? क्वेश्चन आते हैं पेपर में न्यूमेरिकल बेस्ड। वैन डर वाल इक्वेशन को कोई ना कोई न्यूमेरिकल दे देंगे, A भी दे देंगे, कह देंगे कि वॉल्यूम निकाल लें, टेम्परेचर निकाल लें, प्रेशर निकाल लें, तो ये होता है। ठीक है, सो लेट्स वी रीड दिस न्यूमेरिकल। 1 मोल ऑफ अ मीथेन गैस इज मेंटेन्ड एट 300 Kelvin, its volume is 250 cm3, calculate the pressure। so they are asking about pressure exerted by the gas under the following condition when the gas is ideal, so you have to calculate pressure when the gas is ideal। so once you have to apply this formula, PV is equals to nRT, and when the gas is non-ideal, and second time you have to apply the formula when the gas is non-ideal। तो non-ideal के लिए जो हमने अभी प्रेशर वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो हमने अभी मालूम किया है, यू आर गोइंग टू पुट दिस फार्मूला। ठीक है, इज इक्वल्स टू nRT, तो सेम रहेगा, एंड दे आर ऑल्सो गिविंग यू A and B वैल्यूज़, एंड आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज़ गिवन इन योर बुक एंड इट इज़ सॉल्व्ड। इफ़ इट इज़ नॉट, सो यू हैव टू सॉल्व इट। फाइन, सो अगर आप इसको वो करते हैं, इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा PV इज इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस वाला, वो आएगा 98.52। कैलकुलेट कीजिए और देखिए आंसर यही आ रहा है। और सेकंड जो नॉन आइडियल के लिए आप करेंगे, यू आर गोइंग टू पुट द फार्मूला इन द इक्वेशन, और व्हेन यू विल पुट इट हेयर, सो योर आंसर शुड बी इट इज़ इक्वल्स टू 115.2665 ATM। सो इन दोनों सब कुछ गिवन है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है। साथ में ही यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आ रहा है, विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, आई गेस हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। सो इट्स मच बेटर। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।